Hi friends, this is our lecture 9 and here in this lecture we will learn the most powerful feature of the Dart programming language which is a null safety. null safety क्या होता है कि हमारा कोई भी वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम उसको नलेबल बना सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम उस वेरिएबल को यूज करें तो आइदर बिफोर वी कैन set the value as well or while using we can set the value as well. So this is a basically most powerful feature. We will look into that into the next slide. Just see here ki what are the operators and what are the nullable operator, the most common questions which is being asked in the interviewer. So regarding the null safety, like what is this null string, that question mark, what is the use of double question mark, and what is the use of question mark dot, and what is this one exclamation mark, which is a very dangerous, you can say a very dangerous uh, operator it is in the dart. So if you do that means ki it will be like a destroy your project also, or like in the runtime if you do that, no, it will give a null check operator error if you don't pass any kind of value within this operator. So here null safety in a dart, like a by default variable cannot be null. If you, as I told you key, if you define a variable and you are not putting any value to that variable, so it will not allowed. Either you have to make a default value to that variable, or you have to make a nullable. So variable cannot be null. Use a question mark to allow a null. It means ki later we can have that, we can have a value to that particular variable. So non-nullable must have a value. Like here we have a name and we give the value as well. So it is allowed. But nullable can be null. So like I want to put the value to this city later. So we can make by default as a null. So this, once you give like that one, so it is become a nullable. It means basically we can put a value later, and this gives a fallback value. Fallback in the sense key, like we have a value a and it is a type a string, and once we have defined like suppose we have a string a and this is our nullable value, and we are accessing this value somewhere else, we are accessing. So what is the use of double question mark? Basically it is basically checking कि this is a null. If this is a null, use the another one. We can put here like a string as well. So this is basically what it is saying कि अगर हमारा जो लेफ्ट साइड वैल्यू अगर नल है तो यूज करो राइट साइड वाला, और हम हार्ड कोड भी दे सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई बी वैल्यू है तो बी वैल्यू भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. That is what basically it is saying, gives a fallback value to the right side. City is unknown, city is unknown, so use unknown. Yeah, that is a hard coded value. सेफ एक्सेस वॉन्ट क्रैश. अगर हमारे पास ये वैल्यू है, सपोज कि स्ट्रिंग मेरा नेम है और ये हमारा जो है कि नलेबल है, तो क्या होगा जब हम इसे एक्सेस करेंगे, तो क्योंकि ये तो वैल्यू हमने सेट ही नहीं किया है, यहाँ पे नेम तो हमारा अभी डिफॉल्ट वैल्यू कोई यूज ही नहीं कर रहा है. यहाँ पे मेरा जो वैल्यू वेरिएबल नेम है वो नलेबल है. तो अब अगर मैं इसे एक्सेस करूंगा कि नेम डॉट अपर केस, सपोज
अपर केस दे दिया, तो ये यहाँ पे क्या देगा ये, क्योंकि ये वैल्यू हमारा नलेबल है और हमने कोई वैल्यू यहाँ पे सेट नहीं किया और इसे हम एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। तो अगर इसे हम यूज करना चाहते हैं कि सेफली, कि हमें एरर भी ना दे, अगर वैल्यू है तो यूज करो, या फिर अगर नहीं है तो आप एरर भी ना दो, तो यहाँ पे हम इस तरह से अगर क्वेश्चन मार्क डालेंगे यहाँ पे नेम डॉट इस तरह से, तो ये क्या होगा, हमारा सेफली एक्सेस हो जाएगा और हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं देगा, कंपाइल टाइम में और रन टाइम में भी एरर हमारा नहीं देगा। तो इसलिए सेफ एक्सेस इट वोंट क्रैश। अगर हमने ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन मार्क नहीं दिया और डॉट हमने यहाँ पे नहीं दिया, तो क्या होगा, ये क्रैश हो जाएगा हमारा रन टाइम पे, या हमें वहाँ पे एरर देगा, एक रेड स्क्रीन करके आ जाएगा वहाँ पे, इस तरह से हमें एरर देगा। नल ऑपरेटर, अलो नल वैल्यू, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप नल भी वैल्यू है तो आप अलो करो, बाईपास करो। फॉल बैक इफ अ नल, अगर ये डबल क्वेश्चन मार्क क्या करता है हमारा, फॉल बैक अगर लेफ्ट साइड अगर हमारा नल है तो राइट साइड का वैल्यू यूज करो। ये क्या है, सेव कॉल, ये इसमें और इसमें डोंट कंफ्यूज, क्योंकि ये जो हमारा ये डेफिनेशन के टाइम पे होता है, जब भी हम लगाते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे जिस तरह से हम लगाए स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो हमारा नेम है और ये हमारा जो उसका डेटा टाइप, ये बेसिकली अलाउ कर रहा है कि आप डेफिनेशन के टाइम पे इसे नलेबल बनाओ, लेकिन जब आप यूज करो और इसमें अगर वैल्यू नहीं है तो आप सेम वैल्यू को डॉट से क्वेश्चन मार्क और डॉट से एक्सेस कर सकते हो, ये क्रैश नहीं होगा, सेफ नो क्रैश। एसर्ट, इसका मतलब है कि रिस्की है, इसका मतलब है कि श्योरिटी है कि जो भी वैल्यू, जो ये नलेबल, जैसे स्ट्रिंग है हमारा नेम, हम यहाँ पे अगर ये लगा दिए कि नेम में अगर हम ये लगा दिए देन ये अपर केस कर दिए, तो इस टाइम पे हमें क्या मिलेगा कि हम यहाँ पे बेसिकली डार्ट को बता रहे हैं कि नेम जो है कि इट कैन नॉट बी अ नल, ये श्योरिटी हम दे रहे हैं कि आइदर रन टाइम और कंपाइल टाइम में क्या होगा, ये नल नहीं होगा और यूज करो आप अपर केस बिंदास। तो ये हमें श्योरिटी देता है, जब आप इस ऑपरेटर को तभी आप यूज करो जब आपको श्योरिटी, आपको पता हो कि ये कोई भी वैल्यू जो है कि हमारा नल नहीं है, तो ये हमारा नल सेफ्टी होता है। हाँ, तो हमने अपर केस अभी देख लिया था कि अपर केस कैसे काम करता है। यूजफुल स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग का भी प्री बिल्ड, जैसे हमारा लिस्ट का, मैप का और सेट का प्री बिल्ड मेथड्स था, उसी तरह हमारा जो है कि स्ट्रिंग्स का भी मेथड्स होते हैं। तो अपर केस होता है कि कोई भी हमारा जो हेलो वर्ल्ड है इसको किस तरह से अपर केस बनाए, लोअर केस है तो अगर हमने अपर केस में लिखा, अगर लोअर केस मेथड हमने अप्लाई किया तो हमें यहाँ ये मिलेगा। ट्रिम का मतलब कि कोई भी बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो उसे रिमूव स्पेस एट एज, मतलब ये दोनों तरफ से ट्रिम कर दें, ट्रिम लेफ्ट और ट्रिम राइट भी आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। कंटेन एक्स की कोई भी कैरेक्टर है हमारा स्ट्रिंग के अंदर तो उसमें से हमारा रिटर्न ट्रू करेगा फॉल्स। रिप्लेस ए को बी से, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां भी ए है हमारा स्ट्रिंग में वहां उसको बी कर दो। ये हमारा स्ट्रिंग है लो, इसे ट्रिम किया तो दोनों तरफ से हमें क्या मिल जाएगा, स्पेस को ट्रिम कर देगा बेसिकली। ये हमारा अपर केस एग्जांपल है बेसिकली। प्रैक्टिकल करते हैं इसका, लेक्चर 9 डॉट डॉट, और यहाँ पे हम वॉइड मेन लिखेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हमने जैसे कि स्ट्रिंग दिया यहाँ पे और यहाँ पे नेम दिया, देखो अभी क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ लोकल एजेंट यूज, एक्चुअली यहाँ पे इसे देना चाहिए, ये एरर क्यों नहीं दे रहा है। तो प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे कि हमारा ये स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हमने और यहाँ पे हमने सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम बनाया और इसमें कोई भी वैल्यू सेट नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें एरर दे रहा है कि जब हम इसे एक्सेस कर रहे हैं द नलेबल लोकल वेरिएबल मस्ट बी असाइन बिफोर इट कैन बी यूज। अब इसे बोल रहे हैं कि असाइन करो तभी आप इसे यूज कर सकते हो, मतलब कि इस वाले वेरिएबल में जब कोई वैल्यू होगा तभी जो है कि आप इसे यूज कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया आयुष, तो अब क्या होगा, हमें यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा
आयुष, और ये हमें सेफली एक्सेस भी करवा रहा है। अगर हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिया, मतलब असाइन नहीं किया कोई वैल्यू, तो अगर हमें इसे एक्सेस करना है कि अच्छा हम लेटर वी कैन ऐड, मतलब हो सकता है कि 2-3 लाइन के बाद हम ऐड करें, तो इसे हम इस तरह से करने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि दिस इज अलाउ अ नल वैल्यू। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें नल वैल्यू अलाउ करवा रहा है कि लेटर वी कैन ऐड। ठीक है, अब इसे अगर प्रिंट करेंगे तो हमें एरर नहीं देगा, बट यहाँ पे नल वैल्यू रिटर्न होके आ रहा है क्योंकि इस वाले वेरिएबल में कोई भी वैल्यू सेट नहीं है। ठीक है, दूसरा है डबल क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे नेम हम, क्योंकि नेम हमें पता है कि नेम में कोई भी वैल्यू सेट नहीं है, तो ये नल रिटर्न करके देगा। तो इसे हम एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं अपडेटेड नेम। इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं हम। अगर हम यहाँ कहते हैं कि नेम असाइन कर रहे हैं और एक स्ट्रिंग और दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग। इधर वाला जो स्ट्रिंग है हमारा नलेबल नहीं है, अगर इसे भी हमने नलेबल बना दिया तो अब ये एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ से हमने अगर नलेबल को हटा दिया और यहाँ पे नेम को हम असाइन कर रहे हैं अपडेटेड में, तो ये अलाउड नहीं करेगा। तो इस टाइम के इसके लिए हमें डबल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि अगर नेम का वैल्यू हमारा लेफ्ट साइड में नल है तो यूज करो राइट वाले, जो कि है आयुष। अब क्या कर रहा है कि अगर ये नेम नहीं भी होगा, इसमें वैल्यू नहीं भी होगा, तो राइट वाले वैल्यू हमारा अपडेटेड नेम में आ जाएगा, और अपडेटेड नेम को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारा डबल क्वेश्चन मार्क। चेक कर रहे हैं कि सेव कॉल नो क्रैश। ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग का प्री बिल्ड मेथड होता है, तो हम चाहते हैं कि नेम डॉट यहाँ पे अपर केस, टू अपर केस हम यूज करना चाहते हैं कि द मेथड टू अपर केस कांट अनकंडीशनली इन्वोक्ड बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। इसे कंपाइलर को भी पता चल गया कि नेम जो है नल है, या फिर हो सकता है क्योंकि इसका जो टाइप है वो नलेबल है, तो ये एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि इसे चाहिए प्योर स्ट्रिंग, नो नलेबल, तो ये अलाउड नहीं करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अगर इसे एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप इसे सेफली अगर एक्सेस करना चाह रहे हो विदाउट एनी एरर, कि अगर नल भी वैल्यू हो तो भी एक्सेस हो जाए बट एरर ना दे, तो उस टाइम पे आप डॉट तो है ही हमारा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देगा हमें, ये यहाँ पे तो हिडन हो गया, डेड कोड यहाँ पे दिखा रहा, बट जनरली यहाँ पे क्योंकि वो एनालिसिस एनेबल है, we will tell the analysis what is analysis YML file. So while implementing the code that auto detecting, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेम में नल वैल्यू है और ये भी मेथड एक्सेस हो जाएगा हमें। अब इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हमें नल मिल गया, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो मेथड है एक्चुअली वो बाईपास कर रहा है, क्योंकि नल है तो ये मतलब प्रिंट हमारा नल हो, प्रिंट जो है कि नल प्रिंट होके आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सेफली कॉल वाला। और ये देखो असर्ट जो कि रिस्की है, इसका मतलब ही होता है कि जब आप श्योर हो कि इसमें वैल्यू है तभी यूज करो। तो मैं पहले श्योरिटी वाला दिखा देता हूँ कि हमें अपडेटेड नाम यूज करना है। अपडेटेड नेम में तो हम श्योर हैं कि अगर ये नेम वैल्यू नहीं है तो ये वाला हार्ड कोड वाला वैल्यू अपडेट कर दो इसमें, तो यहाँ पे श्योर हैं हम, तो इस तरह से तो हमें मिलेगा ही, अपर केस तो मिलेगा। लेकिन अगर इसको भी हम नलेबल बना दें और यहाँ पे भी हम नलेबल को चेक करके और यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू डाल रहे हैं, बट हमारा जो वेरिएबल है ना वो नलेबल टाइप का बना दी, तो बट यहाँ पे हम श्योर हैं कि इस वाले वेरिएबल में जो वैल्यू है वो आएगी आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लगाएंगे, ये वाला ऑपरेटर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमें कोई भी एरर नहीं आएगी। यहाँ पे देखो एरर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने सिर्फ ये हटा दिया, अब क्या हो रहा है, नेम में तो हमारा नलेबल है, नेम में तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, लेकिन अपडेटेड नेम में
क्योंकि इसका टाइप नलेबल है तो इट एक्सेप्ट नलेबल काइंड ऑफ वेरिएबल आल्सो और वैल्यू आल्सो, सो दैट इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग। बट यहाँ पे श्योर नहीं है। अगर हमने यहाँ पे ये वाला यूज किया, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। अगर हमने ये वाला यूज किया तो ये क्या करेगा, सेफ कॉल करेगा विदाउट एनी एरर, नल प्रिंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हमने ये वाला ऑपरेटर डाल दिया जो एक्सक्लामेशन मार्क है, ये अगर हमने डाल दिया तो अभी हमें एरर देगा। देखो, एक्सेप्शन हैज अकर्ड। ये ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कब और कहाँ कैसे यूज होता है। ये 2-3 ऑपरेटर जो है इसको सेफली कैसे यूज करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। ये ऑपरेटर तभी यूज करेंगे जब हम श्योर हैं। यहाँ पे हमने श्योर ही नहीं है, यहाँ पे अपडेटेड नेम में जो वैल्यू आ रहे हैं वहाँ पे हम श्योर ही नहीं है कि इसमें वैल्यू है, और हमको बाय मिस्टेक अगर ये वाला ऑपरेटर यूज कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, एरर का चांसेस बढ़ जाएगा और ये आपका ऐप को क्रैश कर देगा। देखो, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन एंड हियर नल चेक ऑपरेटर यूज, इस तरह से काम करता है। तो इसको इस तरह से, ये ऑपरेटर बहुत रिस्की है, जब आप श्योर हो तभी आप यूज करो ये वाला। अगर आप श्योर नहीं भी हो तो आप सेफली कॉल कर सकते हैं। अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये था हमारा नल सेफ्टी का, इसका रीकैप देखते हैं। अपर केस लोअर केस तो ये आप देख लेना, ये सब हमने ऑलरेडी वाइल डूइंग द कोड दैट वी ऑलरेडी लर्न दैट वन। तो मेक्स अ वेरिएबल नलेबल सेम चीज़ है। एक बार मैं फिर से इसे समराइज कर देता हूँ कि किस तरह से ये वाला जो है हमारा मेक्स अ वेरिएबल नलेबल अलाउ करता है नल वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए। गिव्स अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ अ नल, राइट साइड वाला ये हमारा क्रैश को रोकता है, और जब हम से श्योर नहीं है तो उस टाइम पे हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। स्ट्रिंग हैव अ बिल्ट इन मेथड्स, अपर केस लोअर केस है, आप देख लेना। ट्रिम कंटेंट्स नल सेफ्टी प्रिवेंट कॉमन बग्स। नल सेफ्टी क्या करता है, हमारा जो भी जनरल बग्स आते हैं, अगर हमने जनरल बग इसी से आता है क्योंकि ये वाले जो ऑपरेटर्स अगर हमने समझ लिया तो बग का चांसेस कम हो जाता है। प्रैक्टिस टास्क क्या है हमारा, क्रिएट एन लेवल स्ट्रिंग, प्रिंट इट विथ डबल क्वेश्चन मार्क, नो वैल्यू प्रोवाइडेड एज ए फॉल। तो यहाँ पे आपको एक करना है कि स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है और वहाँ पे आपको नलेबल बनाना है, और आप एक्सेस करेंगे जब वो वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल आपने बनाया उसको जब आप एक्सेस करेंगे तो डबल क्वेश्चन मार्क लगा और ये वाला वैल्यू डालो कि नो वैल्यू प्रोवाइडेड, कि जब ये हमारा वैल्यू, हमारा लेफ्ट साइड का वैल्यू जो हमने बनाया नलेबल, अगर वो नल है तो हमारा जो प्रिंट हो गया आना चाहिए ये वाला। तो सिंपल सा टास्क है, ऐसे लो आप बेसिक टास्क भी आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thanks for watching. I hope you found this video valuable. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more insightful content. This is Ayushi Shiksha, empowering your learning journey. See you in the next video.